الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو 3 وظائف بتائیں گے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم وہی وظائف بتاتے ہیں جو ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے بزرگوں کے عمل میں رہے۔ انہوں نے ان وظائف کو پڑھا، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کو آگے اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین میں اس کو عام کیا۔ تو اس لیے تاکہ ان وظائف کو پڑھنے کے بعد اور ان کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو فائدہ ہے وہ یقینی اس لیے بھی ہے کہ یہ عمل میں رہ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ضرور اس میں فائدہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے ایک وظیفہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اور بزرگوں نے اس کے چلے بھی کیے، اس کے وظائف پڑھے، اپنی پوری زندگی پڑھتے رہے، مختلف تعداد میں، مختلف اوقات میں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود اس کے فیوز و برکات حاصل کیے، بلکہ اس کو عام کر دیا۔ ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے عمل میں رکھا، خصوصاً میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے صرف اسی اسم مبارک کے 70 چلے آپ نے یکے بعد دیگرے کیے، جو ان کے والد گرامی اور اس فقیر کے جد امجد قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے انہیں کرائے۔ انہوں نے کس طرح اس کے فیوز و برکات حاصل کیے اور وہ چلے کس طرح کیے، وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ سر دست ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم پاک ہے کہ جو شخص بھی اس کو صدق دل کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی اور قلبی سکون اسے حاصل ہوگا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اس اسم مبارک کو کس طرح پڑھا جائے۔ مختلف سلاسل میں مختلف بزرگوں نے بہت سے طریقے اس کے لکھے ہیں، لیکن ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 3125 مرتبہ یہ اسم پاک اگر روزانہ پڑھا جائے پابندی کے ساتھ تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا، یعنی ایک چلہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 3125 اللہ الصمد پڑھے، اور پھر آخر میں 100 مرتبہ درود پاک، یعنی روزانہ کا یہ عمل وہ کرے، اور ایک خاص وقت مقرر کر لے۔ وقت میں یہ ہے کہ یا تو عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، ان دونوں اوقات میں سے کوئی ایک وقت وہ متعین کر لے، اور 40 دن تک اسی وقت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اگر جگہ کا تعین ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر مصلی کا تعین ہو تو یہ بھی اور اچھی بات ہے، یعنی جتنا آپ عبادات میں اہتمام کریں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ بزرگوں نے تو اس کے لیے بڑے اہتمام کیے، لیکن اگر جگہ کا تعین یا مصلی کا تعین نہ بھی ہو سکے تو کوشش کی جائے کہ وقت کا تعین ضرور ہو۔ اس چلے میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، لیکن پابندی صرف یہی ہے کہ وقت کی پابندی ہو، اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور فحش گوئی سے اپنی زبان کو انسان محفوظ رکھے، اور صرف اپنے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا رکھے کہ میں اس کے رضا کے حصول کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد ختم شریف پڑھے، کوئی میٹھی چیز سامنے رکھے، اور اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور پھر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کی بارگاہ میں پہنچا کر اپنا مقصد پیش کر دیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے اس کے چلے کا۔ یہ عورت مرد جو بھی ہیں یہ سب کر سکتے ہیں۔ تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس کو پڑھا، اور ہماری جانب سے یہ تمام سلاسل طریقت کے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے اس کی اجازت ہے، سب یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے۔
दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर कोई ये चिल्ला ना कर सके, हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें कुछ परेशानी महसूस करें या उनकी मसरूफियात ऐसी हों कि 3125 पढ़ना उनके लिए नामुमकिन हो, तो फिर उनके लिए आसानी ये है कि सिर्फ 1100 मरतबा नमाज फजर के बाद अल्लाह समद पढ़ लें। और उसमें तरीका ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ वो पढ़ेंगे, यानी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 1100 यानी 11 तस्बीह अल्लाह समद, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक, और उसके बाद दुआ करें। यानी रोज़ाना पढ़ते रहें, रोज़ाना दुआ करते रहें। इसको मामूल बना लें कम से कम 40 दिन, और अगर मुसलसल भी पढ़ते रहें तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बड़ी बरकत अता फरमाएगा। बस इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जब इंसान किसी मकाम पर पहुंचने वाला होता है, कोई चीज़ उसे हासिल होने वाली होती है, तो उसी वक्त शैतान उसको आकर रोकता है और दिल में ख्याल होता है कि इतनी दिन से हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, न तरक्की हुई, न फला काम हुआ, न फला काम हुआ, और इंसान छोड़ देता है। तो ऊपर जाते जाते एकदम नीचे वो आ जाता है। और आप जानते हैं कि ऊपर जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन नीचे आना कोई मुश्किल नहीं होता। इंसान स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, एक एक सीढ़ी पर, लेकिन जब नीचे अगर आए तो वो 1 मिनट में नीचे आ जाता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर अपने जहन में ये रखें कि मतलूबा नताइज बरामद हों या ना हों, मुसलसल इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मन वालहू अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। इसमें एक बात और ध्यान में रहे कि अक्सर लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर हम इसको डबल पढ़ लें, यानी हमने बताया 3125, तो वो कहते हैं 4250 अगर हम रोज़ पढ़ लें तो 40 दिन के बजाय 20 दिन में 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। इस तरह भी, क्योंकि ये इसकी एक किस्म की ज़कात होती है, एक चिल्ला होता है। तो अगर आप 20 दिन में कर सकें तो सुभान अल्लाह, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि दीगर जो गैर शरई काम हैं उनसे अपने आप को रोकना है और सिद्क़ दिल के साथ इसको पढ़ना है। फिर आप देखें अल्लाह तबारक व तआला इसके समरात, इसके नताइज और हर मकसद में कामयाबी, उसकी रहमतें, बरकतें, कितनी चीज़ें इसके बदले में आपको मिलेंगी। दूसरा वजीफ़ा है या बासितो। ये भी रिज़्क़ के लिए, रोज़गार के लिए बेहतरीन चीज़ है और बहुत आसान है, यानी कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। या बासितो अल्लाह तबारक व तआला का इसमें पाक है। और आप जानते हैं कि जब बंदा सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व नवालहू ज़रूर उसकी पुकार को सुनता है। वो कहता है उजीब दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली, जब पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। तो या बासी तो अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें पाक है। इसका भी चिल्ला इसी तरह किया जा सकता है कि 3125 आप पढ़ें, जो तरीक़ा हमने अल्लाह समद का बताया है, बेऐन ही उसी तरीके से इसको भी पढ़ा जाएगा। और जो ना पढ़ सके तो वो 11 तस्बीह या बासी तो पढ़े। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो 11 पढ़ने में भी अगर उनको दुश्वारी हो तो कम से कम 5 तस्बीह ज़रूर पढ़ें, इससे कम नहीं। 5 तस्बीह फजर या इशा के बाद। और नमाज़ों की पाबंदी तो लाजिम है कि अगर आप वजीफ़ा पढ़ें और नमाज़ों को तर्क कर दें तो फिर इन वज़ाइफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ख़ास तौर पर जहन में रखें कि आप अल्लाह समद पढ़ें या बासी तो पढ़ें या कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, नमाज की पाबंदी शर्त अव्वल है। ये वजीफ़ा भी ऐसा है कि इसके समरात, इसके नताइज जब ज़ाहिर होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। बुज़ुर्गों ने इसको अपने अमल में रखा, रिज़्क़ के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए। किसी की नौकरी है, जॉब है जहाँ तरक्की नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकता है। कोई अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए पढ़ सकता है। कारोबार है, बिजनेसमैन अगर वो है तो उसके तरक्की के लिए वो पढ़ सकता है। लेकिन शर्त वही है कि नमाज़ों की पाबंदी हो और इस वजीफ़े की पाबंदी हो, कम से कम 40 दिन। और अगर मुसलसल आप इसको अपने विर्द में रखें तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहेगा वैसे वैसे कामयाबियाँ आपके सामने आती रहेंगी। तीसरा वजीफ़ा है या सलामो। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का इसमें पाक है। देखें, जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के इसमें पाक हैं,
सब में अल्लाह तबारक व तआला ने असर रखा है। अगर असर ना हो तो हमारे पढ़ने में कोताही है। हम अपना मुहासबा करें कि पढ़ने में क्या गलती है। ये हो सकता है कि गलती हमारे पढ़ने में हो, ये नहीं हो सकता कि माज़अल्लाह उसके इसमें पाक में कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ हो। इसलिए जब भी आप पढ़ें पूरे यकीन के साथ पढ़ें, पूरे एतमाद के साथ पढ़ें। या सलामो, इसकी तादाद 360 मरतबा इशा के बाद, और कोई ये चाहे कि मैं इसको अपने विर्द में रख लूँ तो वो 1100 मरतबा भी पढ़ सकता है, 700 मरतबा भी पढ़ सकता है। मुख्तलिफ इसकी तादादें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 मरतबा वो पढ़ ले। और अगर उसके अलावा है तो फिर दरगाह शरीफ हाजिर होकर फिर इसका तरीक़ा मालूम कर ले तो फिर हम बता देंगे। या सलामो, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा इसमें पाक है जो पढ़ने वाले के लिए सलामती है, सेहत है, अमन है, आफ़ियत है, क़ल्बी सुकून है। नमाज़ों की पाबंदी हो और 1100 मरतबा फ़जर या इशा के बाद वो पाबंदी के साथ पढ़ ले। इसमें औरत मर्द की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन जो पाकी है, पाकीज़गी जिस तरह के हासिल करना है वो शर्त है। नमाज़ों की पाबंदी शर्त है। ज़ाहिर है जब नमाज़ों की पाबंदी होगी तो इंसान खुद ब खुद पाक और साफ़ रहेगा। और तीसरी चीज़ एक और भी है इस वजीफ़े की ख़ास बात, वो ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये भी बताया कि अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि जिसमें हकीमों या तबीबों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए कि ऐसी बीमारी में होते हैं कि जो ला इलाज, वो कहते हैं कि जी अब आप सिर्फ़ इनके लिए दुआ करें। खुदा न करे कोई कैंसर के मर्ज़ में है या कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी में है तो जिनका इलाज भी नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर पर हैं, खाया पिया नहीं जा रहा, सिर्फ दिमाग चल रहा है, सिर्फ सांस चल रहा है, बहुत सारी सूरतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे। तो ऐसे मरीज़ों के लिए बुज़ुर्गों ने फरमाया कि या सलामो 1.25 लाख मरतबा उनके लिए पढ़ा जाए। उसका तरीका ये है कि तमाम अहले खाना एक जगह बैठ जाए या दोस्त अहबाब जो भी हैं वज़ू करके, और सब इज्तिमाई तौर पर मिलकर या तो तस्बीह पर पढ़ लें, उसमें काउंट कर लें, या फिर दाने जैसे मिलते हैं वो बिछाकर सब बावुज़ू होकर बैठ जाएं। और 1.25 लाख इसकी तादाद है, सब मिलकर 1.25 लाख इसको मुकम्मल करें। और उसके बाद उस मरीज़ की, यानी जो ऐसे मर्ज़ में, ख़तरनाक मर्ज़ में है, सिर्फ़ और सिर्फ ये दुआ करें कि मौला जो इसके हक़ में बेहतर हो वो हो जाए। ऐसी सूरत में ये दुआ ना करें कि इसको सेहत हो, या क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो सेहत अगर उसको हो भी जाए तो चलने फिरने से कासिर है और बोलने चालने से भी बहुत सी सूरतें होती हैं। तो सबसे अच्छी दुआ यही है जो बुज़ुर्गों ने बताई कि जो इसके हक़ में बेहतर हो वो कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है कि उसके हक़ में क्या बेहतर है। अगर उसके हक़ में मौत ही बेहतर है तो अल्लाह तबारक व तआला वो अता फरमा देगा, और अगर सेहत बेहतर है तो अल्लाह तबारक व तआला वो अता फरमा देगा। तो इसलिए ये बड़ा आज़मूदा वजीफ़ा है और हमारी तरफ से सबको इसकी इजाज़त है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरीज़ आपके ख़ानदान में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, तो उसका तरीका यही है कि 1.25 लाख मरतबा ये उसके लिए ख़ास तौर पर पढ़ा जाए और दुआ यही की जाए कि मौला जो इसके हक़ में बेहतर हो वो हो जाए। इसके अलावा सेहत व सलामती के लिए भी पढ़ा जा सकता है। कारोबार में तरक्की के लिए भी, कोई नौकरी पेशा है तो उसमें तरक्की के लिए, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं इम्तिहान में कामयाबी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नियत सिर्फ यही हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो बाकी काम जो हैं वह खुद ब खुद हो जाएंगे। तो ये 3 वजीफ़े हमने आपको बताए। पहला अल्लाहु समद, दूसरा या बासितो, और तीसरा या सलामो। और इनके ख़वास भी और फ़ज़ाइल भी आपको हमने बता दिए। बस आखिर में ये है कि जो भी वजीफ़ा आप पढ़ें, नमाज अव्वलीन शर्त है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग नमाज़ों को तर्क कर देते हैं और वज़ाइफ़ पर ज़ोर देते हैं, जबकि नमाज फ़र्ज़ है और वजीफ़ा मुस्तहब है। क़यामत में वजीफ़े के मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। तो पहले हम नमाज की पाबंदी करें, ख़ुद साफ़ सुथरे रहें, पाकीज़ा रहें, उसके बाद सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के ये इसमें पाक जो तीनों हमने बताए हैं, कोई चाहे तो तीनों पढ़ सकता है और चाहे तो किसी एक इसमें पाक को अपना मामूल बना ले।
یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ کسی ایک 10 چیزوں کو پڑھنے کے بجائے اگر ایک چیز آپ پڑھیں اور مسلسل پڑھیں، استقامت کے ساتھ پڑھیں، تو اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ 10 چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھ کر سوشل میڈیا پہ دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا، کسی سے سنا تو پڑھنا شروع کر دیا، فلاں کام کے لیے فلاں کام کے لیے۔ ایک دن 10 وظیفے پڑھے اور دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ بزرگان دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ صرف ایک چیز پڑھیں اور وہی مسلسل استقامت کے ساتھ پڑھیں، اسی میں کامیابی ہے، اور وہی چیز عمل میں آ جائیں تو اسی سے سارے کام ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔